الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والرفعت والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والعصماء وعلی آلہ واصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام اللہ میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن میں اپنے عاشقوں کا پڑھا ہوا درود خود سماعت فرماتا ہوں آج جمعے سے بھی بڑا دن ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولیں حقیقت بات یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کا آپ کی اچھائیوں کا معترف ہوں میرا پہلے بھی یہاں آنا ہوا جتنا بھی سفر تھا رات کو جب آپ کے درمیان میں پہنچے تو ساری تھکاوٹ دور ہو آپ کا ملنا خوش آمدید کرنا موسٹ ویلکم کرنا مہمان نوازی کرنا اور یہ ساری چیزوں نے تھکاوٹ کو دور کر دیا اور آپ کے عشق کا بھی میں معترف ہوں عاشق ہر بندہ بنتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں لیکن عشق کا اظہار کم لوگ کرتے ہیں عاشق ہر کوئی کردہ پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا عاشق پیندا پڑ کے تے تسی سارے پی کے بیٹھے الحمدللہ میں نے بڑوں کو بھی سرمایہ داروں کو بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہے ایکولنسی ہے کافی جگہوں پہ تو یہ چیزیں بندے کو متاثر کرتی ہیں ہونی بھی چاہیے اور یہ جو حضور کی محبت یہ ایک انمول تحفہ ہے اور جس کے اندر یہ محبت ہے وہ دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی انشاءاللہ ہر منزل میں کامیاب ہوتا چلا جائے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ قیامت کا دن ہوگا میزان لگے گا حساب و کتاب ہو جائے گا جنتی جنت جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم جا رہے ہوں گے جب لوگ حضور کے عاشق جہنم کے اوپر سے گزریں گے پل صراط سے گزریں گے نیچے سے جہنم آواز دے گی اے غلام مصطفیٰ جلدی گزر جا تیرے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور یہ کون سی آگ ہے یہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہے جو آپ اور میں لے کر بیٹھے ہیں بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قصور کی سرزمین پر اس وقت بھی اپنے فیوز و برکات کو عام کر رہے ہیں آپ فرماتے آگ تے عشق دوئے ایک برابر پنجابی کی بات ہے سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو اگ تے عشق دوئے ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا اگ تے ساڑے کک تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو می تے پانی مینو دسو عشق دا دارو کیڑا او بلے شاہ او تے کچھ نہیں جو بچدا جتے عشق نے لایا دے او بلے شاہ او تے کچھ نہیں جو بچدا جتے عشق نے لایا تیرا الحمدللہ آپ عاشق لوگ ہیں عشق مصطفیٰ کی شمع کو اپنے اندر روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
अल्लाह ताला आपके इश्क को सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, जितने भी आप सामने तशरीफ फरमा हैं। फिर मैं अपनी स्टेज की जीनत बनने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ज़ी वक़ार को और बिलखसूस हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान अल मदनी क़ादरी दामत बरकतुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना सुमरू साहिब, जिनकी क़यादत में माशाअल्लाह ये जुलूस रवां और तवां है और ये गालिबन 24वां जुलूस है। अल्लाह ताला मजीद इसमें बरकतें अता फरमाए। ये जो करिया करिया बस्ती बस्ती आका अलैहिस्सलाम के इश्क की शम्मा को रोशन करते हुए आप लोग और आपके तमाम रुफाका आपके साथ हैं, फिर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में इसका पूरा पूरा सिला अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप सुन्नी लोग हैं, आशिक लोग हैं, और इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। इश्क के लिए दलील की जरूरत, तवज्जो कीजिएगा। मजनू जो था ना, कुत्ते के पांव चूम रहा है। मजनू ने किसी ने पूछा कि कुत्ता है, तू पैर क्यों चूमना है? उसने कहा तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा है, पर ये मेरी लैला की गली से गुजर के आता है। अरे अजीब बात है ये इश्क की कि लैला की गली का कुत्ता हो तो मजनू उसके पांव चूमता है। तेरे और मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद हो, आशिक चूम की आंखों को क्यों नहीं लगाता? मैंने कहा मजनू तेरे पास दलील क्या है कि तू कुत्ते के पांव चूमता है? मजनू कहने लगा मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे इश्क की जरूरत होती है। और मैंने कहा लैला से प्यार करने के लिए मजनू दलील नहीं मांगता, मोहम्मद से प्यार करने के लिए दलील क्यों मांगते हो? मेरे हजूर से प्यार करने के लिए वैसे दलाइल में कमी नहीं है। आओ मुस्नदुल फिरदौस की मैं हदीस सुनाता हूं आपको। मेरे हजूर का फरमान अपना मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया मन कब्बल ज़ुफ़ुरई इबहामैहि इंदा सिमाई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फिल आज़ानी अना क़ाइदुहु व मुदखिलुहु फी सफ़ूफ़िल जन्नति यौमल क़ियामा। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे ने अज़ान के दौरान अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है, उस दौरान अपने अंगूठों को चूमकर अपनी आंखों पे लगाया, अना क़ाइदुहु व मुदखिलुहु फी ज़फ़ूफ़िल जन्नति यौमल क़ियामा, मैं मोहम्मद क़यामत के दिन उसका कायद भी हूँगा और उस अपने आशिक को पकड़ के जन्नत की सदों में दाखिल करूंगा। इससे बड़ी भी दलील चाहिए हजूर का नाम चूमने के लिए? हजूर का नाम चूमने के लिए इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है? मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन उस बंदे का कायद, कायद किसको कहते हैं? आज हमारे यहाँ कायद आजम को, पाकिस्तान बनाने वाले को कायद आजम कहा जाता है कि उसने हमारी अवाम को, लोगों को लीड किया और हमें एक इस्लामी रियासत का वजूद दिया। मैंने कहा उसने तो एक इस्लामी रियासत का वजूद दिया, मेरे मुस्तफा ने तो पूरा दीन अता फरमाया है। मेरे मुस्तफा ने पूरा दीन अता फरमाया है। हमें हजूर से मोहब्बत करने के लिए दलाइल की जरूरत नहीं। क्यों? तेरा और मेरा महबूब तो वो है जो महबूब खुदा है। तेरा और मेरा महबूब आम नहीं, महबूब खुदा। और अल्लाह ने अपने महबूब से किस अंदाज में प्यार फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, मेरी बात को जाया नहीं जाने देना। यह तेरे और मेरे महबूब की बात होने लगी है। अल्लाह ने अपने महबूब का किस अंदाज में प्यार दिखाया है और किस अंदाज में मेरे रब ने अपने महबूब से प्यार फरमाया है। मेरा महबूब मक्के में चलता है, मेरा महबूब मदीने में चलता है। इस चलने को मेरा रब कुरान में बयान करते हुए फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। यार जिस महबूब की चाल मेरे रब को इतनी पसंद है, जिस महबूब का अंदाज मेरे रब को इतना पसंद है, तो जब महबूब के चलने को, महबूब के उठने को, महबूब के बैठने को, महबूब के बोलने को मेरा रब इतना पसंद फरमा रहा है, यहाँ एक बाबे के कलम का वजद आ गया।
कुल कह के बात अपनी मुंह से तेरे सुनी। अल्लाह अकबर, खुदा को कितनी पसंद है गुफ्तगू तेरी। अल्लाह अकबर, खुदा को कितनी पसंद है गुफ्तगू तेरी। तवज्जो, ये मैं आपको समझाने लगा हूं, शेर आपने सुना है, समझा नहीं। देखिए कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया 1 घंटे का, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुश है। आप आगे ये पैसे निछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, हकीकतन आप ना भी हैं तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे गुस्सा भी नहीं है, लेकिन आप मेरी बात पर नहीं, हजूर की शान पर सुभान अल्लाह बुलंद करें। मुझे इस बात पे खुशी होगी, मुझे इस बात पे खुशी होगी कि जब भी हजूर की बात आए, बात मुकम्मल हो, आप अपने हाथों को बुलंद करें, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। कोई वेले नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दौलत की किसी तरह भी जरूरत नहीं है। अरे इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? आप और मैं अपने मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस पूरी सूरत में अल्लाह की तौहीद बयान हुई है। किसकी तौहीद बयान हुई है? अल्लाह एक है, अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, अल्लाह का कोई बाप नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। अल्लाह की वहदानियत को बयान हुआ, लेकिन अल्लाह ने खुद ऐलान नहीं किया कि मैं खुदा कह रहा हूं कि मैं रब एक हूं, मैंने किसी को जन्म नहीं दिया और ना मुझसे कोई पैदा हुआ, ना ये बात रब की थी। अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब तू कहना, ये बात रब की थी, कुल कह के बात अपनी मुंह से तेरे सुनी। अल्लाह अकबर, खुदा को कितनी पसंद है गुफ्तगू तेरी। मेरे रब ने जगह जगह फरमाया कुल महबूब तू कह, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल कुल इसका मतलब है महबूब आप कह दीजिए, महबूब आप फरमा दीजिए। अच्छा, बातें मेरे रब की हैं, अल्लाह डायरेक्ट नहीं कह सकता बंदों को? कह सकता है। चलो डायरेक्ट नहीं भी, अल्लाह जिब्रील को ही कह दे, चल भी जिब्रील ये ले जा मेरे बंदों को दे आ ना। जिब्रील भी बीच में है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब का बीच में वसीला रखा है। ये वसीले वाला अकीदा ये किसी मौलवी का दिया हुआ नहीं, ये बरेली से आया हुआ नहीं, ये अर्शों से उतरा हुआ मेरे रब का अता करदा अकीदा है, अर्शों से उतरा हुआ अकीदा है। मेरे रब ने अपने महबूब को बीच में वसीला बनाया, हमें नमाजें भी अता फरमाई है, रोजे भी अता फरमाए हैं, हज भी दिया है, और हमें मेरे रब ने कुरान भी दिया है और दीन भी दिया है, तो मुस्तफा के वास्ते से दिया। ये है तेरे और मेरे मुस्तफा की शान कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वसीला बनाया। जब भी कुछ ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ये फिर सुना दे सही, ये शेर ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। उनसे मुराद पता कौन है? मेरे बरेली के ताजदार कह रहे उनसे मतलब मदीने वाले से। सुभान अल्लाह। यार मदीने वाले का नाम आ गया तो सुभान अल्लाह। मदीना तो नाम ही ऐसा है कि सीने में ठंड डालता है। हाँ जी, आशिकों को मदीने से मोहब्बत करने के लिए दलील की जरूरत है नहीं, हम मदीने वाले से भी प्यार करते हैं, मदीना शहर से भी प्यार करते हैं। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। आज अगर कोई बादशाह बादशाहत लेकर बैठा है, आज अगर कोई जागीरदार तो अपनी जागीर को लेकर बैठा है, आज कोई वडेरा अपने वडेरेपन को लेकर बैठा है, दौलतमंद दौलत को लेकर बैठा है, वो मिली है तो दरे मुस्तफा से मिली है। बस बात खत्म होगी। यहां पर भी मेरा इमाम बोला, इमाम ने कहा बाखुदा खुदा का है यही दर। बाखुदा का मतलब पता क्या? अल्लाह की कसम, जो अल्लाह का दर है ना, वो मुस्तफा का दर है। बाखुदा खुदा का है यही दर,
नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने ना कर दी ना, फिर मेरे रब की भी ना है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने हाँ कर दी, मेरे रब की भी हाँ है, मेरे रब की भी हाँ है। बस इस बात को आपने अपने दिलों में मोजज़न रखना है कि हमें हजूर की जात से मोहब्बत करने के लिए दलाइल की जरूरत है। मेरे रब ने दलाइल बेशुमार, कुरान पूरे का पूरा महबूब अलैहिस्सलाम की तारीफ में नाजिल हुआ है, हजूर की शान में नाजिल हुआ है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हजूर के जिस्म अनवर से मस होने वाली चीज नीचे नहीं गिरने देते। आप वुजू फरमाते हैं, पानी नीचे नहीं गिरता। मैंने अबू बकर से पूछा, अबू बकर ये हजूर के वुजू का गसाला जो है तूने नीचे क्यों नहीं गिरने दिया? क्या कुरान पढ़ा है या बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ ली है या जिब्रील आया है? अबू बकर ने कहा नहीं, मेरा अंदर का इश्क कह रहा है ये महबूब का पानी है, मेरा इश्क कह रहा है। अबू जहल को दलील चाहिए हजूर की शान के लिए, हजूर के मकाम को लिए, अबू बकर को दलील नहीं चाहिए। अल्लामा साहब ने जरा निशानदेही फरमाई थी मेरे आका अलैहिस्सलाम के वाक़े मेराज की तरफ। लोग इसके भी इनकारी होके फिर रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया? हजूर ने मेराज जो किया ख्वाब में की है, सर की आंखों से नहीं की। मेरे इमाम ने यहां पर भी ना हमें समझाया है। इमाम साहब फरमाते हैं, खिर्द से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहां पड़े हैं खुद जेहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे, किसे बताए किधर गए थे? और हजूर तो वहां गए थे जहां मकाम ही कोई नहीं है, जेहद ही कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना शिमाल है ना जनूब है। वो तो जगह ही वो है जहां मकाम ही कोई नहीं है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, कौन सी? वो जो मेरे महबूब तुझ पे आया नहीं। अरे मुहीत की, अच्छा ये आला हजरत की जो उर्दू है ना, ये जल्दी समझ में नहीं आती। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, मैं समझाने लगा हूं। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। ये पता क्या जी, ये आला हजरत का शेर है। ज्योमेट्री, ज्योग्राफिया और ये अलजबरा पढ़ने वाले जो लोग हैं, ठीक है, साइंटिफिक इल्म हासिल करने वाले जो लोग हैं, ये जानते होंगे ज्योमेट्री में एक पनकार होती है, उस पनकार के अंदर पेंसिल डाली जाती है और उस पनकार के एक सिरे को यूं गाड़ा जाता है, दूसरे सिरे को घुमा के दायरा बनाया जाता है और ये दायरा बिल्कुल गोल हो जाता है। अच्छा, जब ये दायरा गोल हो जाता है तब पता कोई नहीं चलता कि दायरे की इब्तिदा कहां से हुई थी, इंतहा कहां हो रही है, क्योंकि वो पनकार का काम होता है। जो उसकी एक टांग नीचे गाड़ी जाती है, दूसरी को घुमाया जाता है, वो इस अंदाज में घूमती है, वो दोनों किनारों को आपस में बराबर आके जोड़ती है, वो बराबर आके जोड़ती है। तवज्जो कीजिएगा, वो बराबर आके जोड़ती है। अल्लाह तो फरमा रहे हैं, कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, ये जो पनकार के दायरे के इर्द गिर्द छोटे छोटे नुक्ते बनाए जाते हैं, अल्लाह हज़रत उनको मुखातब करके कह रहा है, ओए तुम अव्वल आखिर के फेर में हो कि पहले कौन है बाद में कौन है? अरे उस मुहीत की चाल से तो पूछो हजूर किधर गए थे और किधर से आए हैं। हजूर किधर से आए और किधर गए थे? कहते हैं ये दायरा कह रहा है कोई पता नहीं है हजूर कहां तक होके वापस आ गए। अबू जाल को मेरे हजूर ने बताया कि मैंने अपने रब का दीदार किया जी और इतनी जल्दी मैं वापस आ गया। सुनो, ये बात ना मेरे आका ने अपने रब से भी की थी, मौला मैं जमीन पे जाऊंगा तो जमीन वाले तो इतबार नहीं करेंगे मैंने रब का दीदार किया, तो मैं उनको कैसे बताऊंगा? मेरे रब ने फरमाया, महबूब तू जा, ऐलान का एहतमाम भी खुद ही हो जाएगा, तू जा। महबूब आगे, महबूब आगे। सबसे पहली मुलाकात अबू जाल से, जब हजूर ने अबू जाल को बताया ना, कहने लगा तो फिर मैं लोगों को दसा। मेरे आका ने फरमाया बताओ, यही तो काम करने हमने, जाओ। इसीलिए तो हम बैठे हुए थे कि कैसे बताना है लोगों को, बताओ जाके। अबू जाल ने सबसे पहले जाके अबू बकर सदीक के दरवाजे पे दस्तक दी। अबू बकर सदीक आया, हाँ भाई अबू जाल किधर आए हो? कहा कि भाई अबू बकर मुझे एक बात बता, अगर कोई बंदा कहे, कोई बंदा, मेरे जुमले पे तवज्जो करनी, अगर कोई बंदा कहे
कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमानों को क्रॉस किया, मैंने तमाम अर्शों को क्रॉस किया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, अपने रब का दीदार किया और मैं वापस फिर मक्के में आ गया रातों रात। तू मानता है? अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे? अगर कोई कहे, मैं तो नहीं मानता। अबू जाल हो गया जनाब शेर कि अब मेरी बात चलेगी। कहने लगा अच्छा अबू बकर, अगर ये बात है तू इस बात को नहीं मानता, फिर ये बात किसी और ने नहीं की, ये उस मोहम्मद ने की है जिसका तूने कलमा पढ़ा। तवज्जो कीजिएगा, अबू बकर ने कोई दलील नहीं मांगी। अबू बकर कहने लगा अगर कोई कहे मैंने ये काम किया, अबू बकर नहीं मानेगा। अगर मेरा मोहम्मद कहे तो बगैर दलील के मानूंगा। अबू बकर, जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा ना, वो बात यही कर रहे हैं, वो मोहम्मद ये बात कह रहा है। अबू बकर कहते हैं मैंने मोहम्मद के बारे में तो इनकार ही नहीं किया, मैंने तो कोई का इनकार किया। कोई कहे तो अबू बकर नहीं मानेगा, अबू बकर का मोहम्मद कहे तो अबू बकर दिलो जान से मानेगा। अबू बकर ने हजूर से इश्क किया है, और इश्क दलीलों के साथ नहीं होता, इश्क बगैर दलील के होता है। और तवज्जो कीजिएगा, अग ते इश्क तो में एक बराबर है। क्या ख्याल है? जहां इश्क होता है ना, वहां फिर बंदा नहीं होता, वहां कोई चीज नहीं होती। और तवज्जो, अबू जाल ने कहा जी ये चांद के 2 टुकड़े करो, मेरे हजूर ने कर दिए, नहीं माना। अबू जाल ने कहा जी मेरी मुट्ठी में क्या, मुझे बताओ। मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए? कहने लगा जी बड़ी बात है, अगर मुट्ठी वाली चीज बोले तो कंकरियां कलमा पड़ जाती हैं, लेकिन माना कोई नहीं। क्यों? अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते। अरे का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अरे अबू जाल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अबू जाल को महबूब नहीं दिखाए जाते। महबूब देखने के लिए दलाइल नहीं होते। हजरत सलमान फारसी ईरान से चले थे, बहरहाल इनका किस्सा बड़ा तवील है। चलते चलते ये मदीना के बाजार में आके बिक गए, गुलाम बने। तेनू लब दे असी आप गवाचे, सानू अपनी खबर ना काई। पंजाबी तो नहीं ना समझ आ रही आपको? अगर कहें तो अरबी भी बोल सकते। अल्लाह अकबर, तो फिर पंजाबी पे तो सुभान अल्लाह बनती है। और ये बड़े बड़े मकबूल बाबे का कलाम है यार। तेनू लब दे असी आप गवाचे, सानू अपनी खबर ना काई, सातों चंगे कख गलियां दे, सानू आंख दे लोग शुदाई। ओए नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई। ओए आजम अपना आप मुकाया ते फिर यार ने चाती पाई। अपना आप मुकाना पड़ता है बंदे को, फिर महबूब का दीदार होता है, फिर महबूब की नजर करम होती है। बगैर इश्क के कुछ नहीं मिलता। हजरत सलमान फारसी बिकते बकाते, चौधरियों का बेटा था, ये बडेरों का आदमी बच्चा था, बड़े नाजों में पला और अकलौता बेटा, अकलौती औलाद, ना कोई दूसरा भाई ना बहन, लेकिन बाप को छोड़ दिया, जागीरदारी को छोड़ दिया, बडेराइज्म को छोड़ दिया, छोड़ के मोहम्मद अरबी के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। राहिबों के दर पे चले जाते, कहने लगे यार मुझे अल्लाह से मुलाकात करवाओ। जो पादरी थे ना ईसाइयों के, उस वक्त वही अच्छा दीन था, कामिल दीन मुसलमानों का वही था। ईसाइयों को कहने लगे मेरी रब से मुलाकात करवाओ। उन सब पादरियों ने कहा हम तो नहीं करवा सकते, पर एक आने वाला आ रहा है। उस वक्त तो आ रहा है, अब तो सरकार आ चुके हैं। हजरत सलमान फारसी को ना एक राहिब ने कहा कि मैं अल्लाह से मुलाकात नहीं करवा सकता, एक आने वाला आ रहा है तेरी मुलाकात करवाएगा। सलमान फारसी ने कहा उसकी निशानी, तवज्जो हुजूर की निशानियां सुनो, पैदा होने से पहले की बात है, हुजूर अभी मदीना में नहीं आए, राहिब निशानियां बता रहे, कहते हैं जी उसकी निशानी ये है, उसकी कमर पे मोहर नबूवत है, ला नबी या बादी की मोहर लगी हुई है, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज कोई काना दज्जाल मिर्जा कादियानी उठ के कहे माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकरे कुफर कुफर नवाशिद कि मैं अल्लाह का नबी हूं, बदबख्त मरदूद। नबी का तो जिस्म भी ऐब से पाक होता है, उसकी आदत भी ऐब से पाक होती है, उसके अखलाक भी ऐब से पाक होते हैं। तू तो है ही अंग्रेज का गुलाम और आंख से काना, तू नबी नहीं हो सकता, तू झूठा दज्जाल हो सकता है। मेरे आका कल भी नबी थे, आज भी नबी हैं, क़यामत के दिन भी नबी होंगे।
मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत आदम की तख्लीक से पहले भी नबी थे, तमाम नबियों की मौजूदगी में भी नबी हैं, आज भी नबी हैं, क़यामत के दिन भी मेरे हजूर की नबूवत के चर्चे होंगे। आओ दलाइल बेशुमार हैं। मैं अपने इमाम का कलाम सुनाता हूँ। कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी नहीं आ रही समझ। अभी मेरा टाइम बाकी है जी, आपके टाइम का नहीं पता, मेरा बाकी है। तेरा सुभान अल्लाह तो बोलिए। मैंने वैसे खुश तभी किया, टाइम तो आपका ही है यार। हजूर के आशिकों का वक्त है इस वक्त। मेरे इमाम ने क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं और कहीं भी बनी। देखे ना जी, हमारे चौधरी साहब हैं, SHO साहब हैं, MP MNA साहब हैं, असी जाने हजूर परेशानी बन गई, कोई करो यार, उनसे कुछ नहीं होता। फिर दूसरे के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करता। ते असी वापस घर आए, सानू पुछदे ने कोई गल बनी बई? तो भाई कितने को गल सुनी गई, बनी को गल? मेरे इमाम इस तमाम आवाम को जो मैदान माशर में खड़ी होगी मुखातब करके पता क्या कह रहे हैं? हदीस पाक है, ये हदीस पाक का मफहूम है। शेर के अंदर लोग जाएंगे पहले आदम के पास में, मैशर के मैदान में। आदम कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। फिर आदम सानी हजरत नूह के पास आएंगे, कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। फिर कलीम के पास आएंगे, कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। चलती चलती दुनिया हजरत ईसा के पास आएंगी, हजरत ईसा कहेंगे कर मैं भी कुछ नहीं सकता, हाँ मैं पता बता सकता हूँ। भाई ईसा पता तो बता, कहा पता एक ही, या मदीने चले जाओ, मदीने चले जाओ। तैबा में मर के आंखें बंद ठंडे चले जाओ, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कर मैं भी कुछ नहीं सकता, मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा के पास चले जाओ। मेरे इमाम ने वो जो खलक फिर रही होगी ना, कभी इस दर पे कभी इस दर पे, उनको मुखातब करके कहा खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ओए कहीं भी बनी ये बेखबरी के खलक फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। हजूर को ढूंढती फिरेगी ये तमाम कायनात क़यामत के दिन। हजूर के लिए मैं और आप मारे मारे फिरेंगे। नबूवत मेरे हजूर की है, किसी और की नबूवत। उस पादरी ने कहा कि उस नबी की कमर पे मोहरे नबूवत है, एक निशानी, और दूसरी निशानी ये है वो खजूरें वाले शहर में आएंगे हिजरत करके। किस शहर में आएंगे? मदीना शरीफ की खजूरें आज भी मारूफ हैं। चाहे बंदा खजूरें लेके आए मक्के से, आगे यही कहता मदीने दियां खजूरां ने। क्या ख्याल है जी? हज मक्के में होता है, हज मक्के में होता है, उमरा मक्के में होता है, ना हज मदीने में ना उमरा मदीने में। लेकिन यहाँ से कोई हाजी हज के लिए जा रहा है, कोई उमरा करने जा रहा है मक्के में, उसे पूछा जाए किधर जा रहे हो, कहता जी मदीने जा रहे हो। तो मैंने कहा यार मदीने में तो रुकन ही कोई नहीं हज का, मदीने में तो उमरे का रुकन ही कोई नहीं। उसने कहा तुम रुकन की बात करते हो, अगर काबे को भी फजीलत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके मिली है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। उसने कहा जी खजूरों वाले शहर में आएंगे, दो निशानियां होगी। तीसरी निशानी ये है वो सदका खाते नहीं है और तोहफा कबूल करते हैं। सलमान फारसी को राइब ने कितनी निशानियां बताई हैं? 4। सदका नहीं खाते, तोहफा कबूल करते हैं, खाते भी हैं, और मोहरे नबूवत भी है, खजूरों वाला शहर है। हजरत सलमान फारसी बिकते बिकाते ना खजूरों वाले शहर आ गए, गुलाम बन गए, बिक गए। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत जिना दे सावे। सानू हले भी पंजाबी दी समझ नहीं आई, फिर अरबी शुरू करते। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत जिना दे सावे। अगली बार जिस दम नाल है प्रीत साडी वो दम नजर ना आवे, गलियां साकू संज नसीबन ते वेड़ा खान नू आवे। ओए गुलाम फरीदा ओते की बचना जिथे यार नजर ना आवे। ओए गुलाम फरीदा ओते की बसना, ये मेरी आखिरी बात है, ओते की बसना जिथे यार नजर ना आवे। क्या बात, ये आशिकों की मोहब्बत है यार, ये आशिकों का अंदाज है अपना अपना। हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत जिना दे सावे, ओए जिस दम नाल है प्रीत साडी यारी ओ दम नजर ना आवे। गलियां साकू संज दे जीवन सुनिया मतलब कोई फिर ही नहीं रहा ते वेड़ा खान नू आवे। ओए गुलाम फरीदा उते की वसना यार जिथे यार नजर ना आए। हाय क्या बात है। अब वहां बिक गए और मजे की बात यह जिस मालिक ने खरीदा ना उसका खजूरों का बाग भी है। सलमान फारसी की ड्यूटी लग गई जी खजूरों की रखवाली करनी, दिन रात खजूरों की रखवाली करते हैं, खजूरों पे चढ़ जाते हैं, खजूरें तोड़ते हैं, मंडी लेके चले जाते हैं। अचानक एक दिन खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए वो जो मालिक था ना उसका चचा जाद आया, उसने नीचे आके उस मालिक को कहा भाई तुम्हें पता चला मकामे कुबा पे मोहम्मद आ गए हैं। ये बात हजरत सलमान फारसी के कानों में पड़ी, खजूर के दरख्त के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी, धड़म से नीचे आए, हिजर माही दे अग्गा लाइया इन्हां लगियां नूं कौन बुझावे। मैं की जाना जात इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे, ना खुद सोवे ना सोवन देवे, अति सुत्तिया आन जगावे। मैं कुर्बान इस इश्क दी बाहू जेड़ा विछड़े यार मिलावे। मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहू जेड़ा विछड़े यार मिलावे। हजरत सलमान फारसी झट से नीचे आए, जेकर यार बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जेकर यार बुलावे एकदम दा मतलब है जल्दी छेती नाल, जेकर यार बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जे सिर मंगे दे दईए कदी देर ना लाइए, ओ यार दी गल दा कदी गिला ना करिए, भावें सहक दे ही मर जाइए। ओए गुलाम फरीदा या ते लाइए ही ना ते जे लाइए फिर तोड़ नभाइए। रास्ते में छोड़ने वाली ये यारियां नहीं है, और मेरे हजूर की यारी आपको रास्ते में नहीं छोड़ेगी, ये कब्र में भी आपको सुरखरू कर देगी, दुनिया में भी कर देगी, मैदान माशर में भी कर देगी इंशाअल्लाह। हजरत सलमान फारसी दौड़ के नीचे आए, कहा यार वो जो नाम लिया था दोबारा लो ना, मेरे मोहम्मद का नाम तो लो ना, सबसे औला हो आला हमारा नबी, जरा लो ना यार मेरे मोहम्मद का नाम। मुझे मजा आया हजूर का नाम सुन के। आज हजूर का नाम सुन के हम नाम चूमे तो लोग कहते हैं शिरक हो गया, लोग कहते हैं बिदअत होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? और मैंने कहा यार तेरी डिक्शनरी में नहीं होगा, ये तो हमारे सीनों में लिखा हुआ है, तुम्हें हम कैसे बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है? आशिक को मोहब्बत के लिए दलाइल नहीं चाहिए होते, वो बगैर दलील के मोहब्बत कर रहा होता है। खैर जी, सलमान फारसी को पता चल गया कि मेरी सरकार आ गए और मकामे कुबा पे आ गए। पूरा दिन काम किया, रात को पूरे बाग की आला खजूरें इकट्ठी की, आला, और मकामे कुबा पे चले गए। देखा तो सरकार साहबा के जुर्मट में बैठे हुए, वह दुआ का चेहरा चमक रहा है, वह लैल की जुल्फें अपनी स्याही को बखेर रही हैं, मां जागल बसर के काजल जनाब चमक रहे हैं, लाउक्सिमु बिहादल बलद के कदमों से रोशनी निकल रही है, अलम नशरा का सीना फैद लुटा रहा है। हजरत सलमान फारसी देखते ही कहते हैं अरे अगर कोई खुदा से मिलाएगा वो कोई और नहीं है, यही मुस्तफा है। सलमान फारसी पीछे बैठे हुए हजूर की बारगाह में खजूरें पेश की, आला खजूरें या बाग की। कहने लगे सरकार ये सदका है। क्या जी? सदका है। मेरे हजूर ने पहली खजूर आई उठाई साथ वाले साहबी को, दूसरी साथ वाले को, तीसरी साथ वाले को, और मेरे हजूर खजूर देते हैं, अपने आशिक को भी देखते हैं। सलमान फारसी टिक टकी बांध के देख रहे, और जब हजूर देखते हैं ना सलमान फारसी नीचे हो जाते हैं, और जब सलमान फारसी देखते हैं तो हजूर नजर हटा लेते हैं। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, ते जे मैं ना वेखा वो वेखे। नहीं समझ आ रही जी? मुझे ये स्टेज वालों से दाद चाहिए इस बात पे, जितने आप बैठे अलामा साहब माजरत के साथ। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, ते जे मैं ना वेखा वो वेखे। वो एडा नसीब किथे ततड़ी दा कि मेरे वेखन दे विचों वेखे। ओए गुलाम फरीदा यार दे बूहे मरिए भावें वो वेखे या ना वेखे। ओए गुलाम फरीदा यार दे बूहे मरिए भावें वो वेखे या ना वेखे। सलमान फारसी हजूर ने सारी खजूरें उठाई, साहबा में तकसीम फरमा दी, खुद कोई नहीं खाई क्योंकि सदका था ना। सलमान फारसी वापस अगले दिन पूरा दिन बाजार में काम किया, वही हिजर माही दे अग्गा लाइया। दिन गुजरता नहीं है, दिन बड़ा हो गया है। अल्लाह यार हजूर को देखा हो,
पीर मेरे अली साहब गोलरा के ताजदार खाम में देखा था ना, उठते ही कह दिया था मुख चंद बदर शाशानी है, हाँ जी, मथे चमक दी लाट नूरानी है। और आप फरमाते जब हजूर की खाम में ज़ियारत हुई ना, फरमाते ये जो इतनी सोहनी सूरत है मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कहना क्या है। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। ये सारी शाने, ये सारी बहारें, ये मेरे आका के नूर से अल्लाह ने तखलीक फरमाई। बड़ी लंबी हदीस हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि मेरे आका के नूर से मेरे रब ने क्या कुछ पैदा फरमा दिया। पूरा दिन काम किया, अगले दिन पूरे बाग की रद्दी खजूरें इकट्ठी की, करने के बाद सलमान फारसी हजूर की बारगाह में कहा कि हजूर ये तोहफा है। मेरे हजूर ने पहली खजूर उठाई, खुद ही तनावल फरमाई। हाँ जी, क्या बात। सलमान फारसी कभी खजूर देखते कभी हजूर देखते, लफ्ज जरा मिलते जुलते हैं, सुभान अल्लाह तो बोले आप। हजूर ने खजूरें खा ली, कितनी निशानियां पूरी होगी? 3। खजूरों वाला शहर है, सदका नहीं खाते, हदिया कबूल करते हैं, तोहफा कबूल करते। एक निशानी रह गई, वापस आ गए, वो मोहरे नबूवत देखनी है। खजूरों के बाग में काम कर रहे हैं, अचानक शोर बरपा हुआ, पूछा गया कौन है? कहा कि एक जनाजा हो गया मदीने में, मोहम्मद अरबी जनाजा पढ़ाने आ रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का वो आशिक तड़प गया और दौड़ के निकला कि आज मौका है, हजूर खुले मैदान में है, हजूर के जिस्म का कपड़ा हटेगा, मैं मोहरे नबूवत की जियारत करूंगा। हजरत सलमान फारसी पीछे पीछे जाते हैं और हवा भी अटकेलियां कर रही है। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी शनाख्त ये तेरी राह गुजर की है। हवा चलती है, सलमान फारसी हवा कपड़े को इधर करती है, सलमान फारसी दौड़ के इधर, हवा जल्दी से इधर कर देती है, सलमान फारसी दौड़ के इधर। मैंने कहा हवा क्या तेरे अंदाज है, क्या तेरे नाज है, क्या तू आशिक को तड़पा रही है। मेरे हजूर ने जनाजा पढ़ाया, वापसी आ रहे हैं, सलमान फारसी पीछे, हवा वही अटकेलियां कर रही है। कल अल्लाह अकबर, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरत सलमान फारसी हवा की तरह झूमते हैं, जिधर आवाज आती है चादर उड़ती है, सलमान फारसी उधर ही चले जाते हैं। मेरे आका ये आशिक का अंदाज देख रहे हैं, मेरे आका आशिक का अंदाज देख रहे हैं। झट से तवज्जो, झट से मेरे आका ने मुंह पर उठा के कहा सलमान क्या चाहते हो, इधर आ, जो तू चाहता है मैं मोहम्मद तुम्हें अता करता हूं। मेरे आका ने चादर हटाई, कहा जा, जो चौथी निशानी रह गई अब पूरी कर ले। मेरे आका ने फरमाया सलमान तेरी चौथी निशानी रह गई है, चला मोहम्मद खुद ही पूरी करवा देता है। सलमान फारसी मोहरे नबूवत से चिमट गए, हजूर को कहने लगे कि हजूर मुझे अपना हाथ दीजिए, गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। मेरे आका ने हाथ बढ़ाया, यार गौर करो ये अब्दुल्ला का हाथ है, हाँ जी, ये महबूबे खुदा का हाथ है। सलमान फारसी ने अपना हाथ रखा, सलमान फारसी कहते मैंने रब से मुलाकात कर ली। ये वो हाथ है जब कंकरियां उठा के फेंके तो मेरा रब फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब ये जो कंकरियां तूने फेंकी है, तूने नहीं फेंकी, मैं खुदा ने फेंकी है, मैं खुदा ने फेंकी ये कंकरियां। उन हाथों पे हजरत सलमान फारसी का हाथ आ गया, गुलामी में शामिल होके ना हजूर के साथ चिमट के रोए। अल्लाह अकबर। रुलते रुलाते हजूर की बारगाह में पहुंचे थे ना, अब रोने के लिए कंधा चाहिए था, टूट टूट के फूट फूट के रोए। मेरे आका ने अपने गुलाम को सीने से लगा लिया, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने फरमाया कि सलमान चल जरा खड़ा होके वो अपना सारा किस्सा तो सुनाना, कैसे कैसे बिकता बिकाता तो मेरी बारगाह में आया है। सलमान फारसी ने किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। वहां एक फारसी को अरबी में ट्रांसलेट करने वाला आदमी था। मेरे हुजूर ने उसको फरमाया चल तू भाई इसको ट्रांसलेट अरबी में करके मेरे गुलामों को भी सुना। उसने सुनानी शुरू की ना, तो जब हजूर की शान जो हजरत सलमान फारसी ने बयान की थी, पहली मर्तबा जब रुखे वद्दुआ को देखा, सलमान फारसी ने कहा कि वद्दुआ का चेहरा था, वल्लैल की जुल्फें थी, चमकदार सोना चेहरा था, और यूं जुल्फें थी, यूं सुरमा था, यूं आंखें थी, यूं पैर थे, यूं चाल थी, यूं मतलब हजूर का हुस्न था। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जेड़े कर देने ना गल्लां, जेड़े माहरम राज हकीकतां दे और राजे हकीकत नहीं खोल दे, जिन्ना वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया तो बोल दे ही नहीं। हकीकत बात की
अच्छा, वो जो फारसी को ट्रांसलेट करने वाला अरबी में था, हजूर की शान पे आके डंडी मारने लगा। मेरे हजूर ने बाजू पकड़ ली। मेरे आका ने फरमाया भी सीधी सीधी गल कर, जो असल बात है वो बयान कर, जो मेरे सलमान ने की है। वो फारसी दानत आदमी झट से योग्य अचानक झटक गया, कहने लगा सरकार आप तो अरबी हैं, आपको फारसी का कैसे पता है? मेरे आका ने फरमाया तू फारसी की बात करता है, मैं उनकी बोली भी जानता हूं जो कभी बोलते नहीं है। सीधी सीधी बातें सुना जो मेरे सलमान ने की हैं, मुझे सारी बातें बता इनको। फिर उसने कहा जी बातें तो मैं भी बाद में बताऊंगा, पहले मुझे भी गुलामी में शामिल कर दी। अल्लाह, ये तेरे और मेरे आका इस्लाम का मिलाद है जी, ये हजूर की शान है जी, ये हजूर का मकाम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने मैं आपकी मोहब्बत से बेहद मुतासिर हूँ, मेरे साथ आए हुए अहबाब भी मुतासिर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दीदनी है आपकी मोहब्बत, आपका इश्क, आपका प्यार, आपकी समातें। अल्लाह ताला आप सबको और इंतज़ामिया को, जितने भी अहबाब इसके अंदर, अनवर भाई हैं, अबीब भाई और दीगर जिनके देखें मुझे नाम सबके नहीं आते, मैंने एक दो का अगर नाम लिया है तो मैं इनको क्योंकि जानता हूं, तो अल्लाह ताला इन तमाम को बरकत अता फरमाए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मदरसे का निज़ाम भी बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा निज़ाम, बहुत माशाल्लाह तालीम जारी व सारी है। अल्लाह ताला आप सब की काविशों को कबूल फरमाए।